मेरे फ़ोन में, and I'll show you in a bit, I have 4,000 recordings from the last like 4 or 5 years. और वो गाने हैं. गाने क्यों लिखते हो? Why you write songs? Happiness? Because I can see ये profession से थोड़ा ज़्यादा है. It's not only about profession or money making process. It's more than that. 1,000%. And it's so much more than that. And also it's just a beginning to what I actually want to do in my life. You know, एक platform है, जैसे ये एक platform है. मेरा as a musical artist एक बहुत बड़ा platform है. और of course I'm a Punjabi singer. I sing for Bollywood. I've sung so much. मैंने I think 115 गाने गाए हैं. उनमें से कुछ कुछ बहुत famous है, but बहुत सारे गाने गाए हैं. It has always been so much more than a profession. And why do I write songs, you asked? When I'm writing a song, that's the only time God is with me. Okay. And when the song is written, when the creation has happened, then humans come in and they talk about कब release करेंगे, cover art कैसा होगा, font क्या use करना है, PR strategies, right? और वो काम लोगों का है, एक humans. But when something's being created, like right now, there are so many people in this studio. This is something you and I are creating with so much love and respect and admiration for each other. Right now, I feel like we're alone in this room. Sure. And I feel like जब सब लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या कहते हो, वो बहुत मायने रखता है. मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था कि आपका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ 14-15 साल हो गए. ओए सच्ची. हालांकि वो जैस्मिन बड़ी प्यारी सी. मैं आज आपने बाल क्यों नहीं कलर किए? और मैं आपको बताता हूँ, ऊपर मेरे सरदार जी रहते हैं. हाँ. तो सरदार जी से मेरी कल बात हो रही थी. हाँ जी. तो उन्होंने मुझसे कहा कल देखना वो रेड कलर करके आएगी. मेरे को लगा बंदी से ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में आपके बाल को लेके हुई है. 1,000%. And I love the color red. I love it so much. It's become my पहचान. हाँ. You know, my fans call me Gulabi Queen. मैंने 2012 में एक एल्बम रिलीज की थी जिसका नाम था गुलाबी. हाँ. तो तब से With Bohemia. Yeah. That was the popular song, right? And गाने तो उसमें काफ़ी थे, but one song उभर के आया. वो था अद्धी राती with Bohemia. And it was the first time I felt really famous. And my fans started calling me Gulabi Queen. तब तो बहुत कम लोग जानते थे. किसी ने शुरू किया और हमने उसको अपना लिया. Gulabi Queen. So red hair, the real reason why I don't have red hair in life right now is because it's a lot of bleaching. And my hair was getting damaged. So I thought, okay, इतना नहीं करते. Fashion करेंगे stage पे. Full fashion करेंगे. अब मेरा कल शो है, तो कल देखना क्या हो रहा है. आज हम दिल से बातें करने आए हैं, तो हम जैसे आप कहते हो ना, सरल हो कैसा था? सरल होना कठिन है. बट आज हम सरल होके आए हैं. सो ये गुलाबी क्वीन उस गुलाबो सॉन्ग की वजह से था, गुलाबी सॉन्ग की वजह से था, या आपके बालों की वजह से था, या फैंस की वजह से था? इसकी क्या फाइनल स्टोरी क्या है? I love the color gulabi. I love the theme of femininity. I love feminine energy. I love speaking for women. I love writing songs for girls. And since then, whether it's the album Gulabi, whether I've embraced the name Gulabi Queen, whether what I'm saying right now, I'm hoping that there's some little girl that's listening to me right now be like, I can do something grand with my life too. So I specifically make songs, and maybe a 1 or 2 lines in there is like a little inception. Nice. मैंने जब पढ़ना शुरू किया गुलाबी सॉन्ग के पहले ही कहानी, तो बड़ी मतलब आई डोंट नो अगेन ये सच है या झूठ है, बट मैंने जितना पढ़ा आपका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ क्योंकि बहुत बड़े बैनर पे रिलीज नहीं हुआ था, वो आया. कौन सा? जो फर्स्ट सॉन्ग आपका था. So मुस्कान. Yeah, 2008. साल भी बताओ ना. Okay. 2008 में मुस्कान आया. 2008, yes. उसके बाद मैंने कहीं सुना कि आपने 80 गाने लिख दिए थे. Where are you reading all this? Are you reading my journals? Again, it's true? I mean, I think so. I don't know the exact number. मैंने ना, हाय रब्बा.
you're like in a corner of my mind right now because I did. एंड एक कहानी मैंने और भी सुनी थी, अगर सच है या झूठ पता नहीं, कि आप सीडी बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि किसी अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट को दे देना, एंड देन वहाँ से किसी ने शायद वो सीडी कहीं से भूमिया तक पहुंची, एंड देन ही कोऑर्डिनेटेड. कितना सच? It is correct. It is 100% correct. What I used to do was, हिंदी हम क्या करते थे, हम मेरे फ्रेंड का गराज में एक बहुत सिंपल सरल सा सेटअप था. हाँ. तो उसके पास माइक था और मेरे पास आवाज़ थी. सो मैंने बोला इसको करते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि कैसे बताएंगे दुनिया को कि हम गाना चाहते हैं. सो आवाज़ तो कर ली रिकॉर्ड, पर हमें था कि इस पे कोई म्यूज़िक भी होना चाहिए. तो हमें लगा डीजे बनाता म्यूज़िक, हमें क्या पता कोई प्रोड्यूसर होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर होता है. सो मुझे लगा क्लब्स के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, तो कहेंगे जो भी इधर का डीजे है ना वो मुझे करो कॉल, बिकॉज मैंने बनानी एल्बम. मैं ठहरे स्टार जेन्युइन. सो फिर हुआ क्या, मुझे आई कॉल, सीडी पे लिखा था मेरा नाम और नंबर, जैस्मिन सैंडलस, और 209 एरिया कोड था और मेरा फ़ोन नंबर है ना परमानेंट मार्कर में. सारी रात बैठ के एक दिन मैंने सीडीज़ बर्न की कंप्यूटर पे. देन इतने पैसे थे कि गैस के लिए कार में, एंड देन फिर हम गए सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, तो फिर खड़े हो गए बाहर जाके. इतने पैसे नहीं थे कि $20 थी टिकट, तो $20 थे मेरे पास. सो मैंने बोला इट्स एनफ फॉर गैस. देन हम बाहर खड़े हो गए, मैं और मेरी फ्रेंड थी. एंड देन जब लोग बाहर आ रहे हैं 2 बजे क्लब फिनिश होने के बाद, हम सीडीज़ सबको दे रहे हैं, और ये हमने बहुत हफ्ते किया. हाँ. ठीक है, तो फिर हमें कॉल आ रहा है एक दिन कि ए व्हाट्स अप जैस्मिन, है ना, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. हर स्टोरी. वाओ, मेरी रिसर्च इतनी खराब नहीं थी जो मैंने पता किया. I mean, I was shocked listening this कि जैस्मिन बाहर सीढ़ियाँ बांट रही थी. या जैस्मिन बाहर सीढ़ियाँ बांट रही थी, और उसने ये बार बार किया. जैस्मिन ने ये देखा था कि कैलिफोर्निया में ये लोग करते हैं अक्सर, आर्टिस्ट स्पेशली रैपर्स, ये कल्चर है, कल्चर था कि देयर सो मच हंगर, इतना एम्बिशन है ना कैलिफोर्निया में कि कुछ तो करेंगे. एंड अगर हम जलंधर में रहते या फिर इंडिया में रहते, शायद हम नहीं कर पाते, शायद हम यहाँ ना होते. क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में कहा जाता है कि तू कितों सिंगर बनना है, ना तेरे को ट्रेनिंग है ते ना तो नहीं, तेरे को नहीं होना. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. How many people in your family or your inner circle supported your I got it. आप पूरी मेरी बात समझ जाओ. सबके साथ है. ज़्यादा बोलूंगी ना तो ये सारे इंटरव्यू देख रहे हैं जिनके बारे में बात कर दूंगी. मैं अभी समझ गया. मैं ये एक्चुअली इसको हमने दूसरी तरह कोट किया था, जो मैंने निकाला था इसका, कि माँ बाप आपके पैशन या ड्रीम के विरोधी नहीं होते हैं. दे जस्ट डोंट वांट टू सी यू गरीब. वो चाहते हैं कुछ सेटल्ड हो जाए, ठीक ठाक इतना रहे कि खाता कमाता रहे. इसके चक्कर में वो नहीं चाहते कि आप जाके स्ट्रगल करो, बिकॉज दे फील कि यार ये सपने देख रहा है, कुछ होगा है नहीं, बाद में बर्बाद हो जाएगा. सो आई बिलीव वो सारे पेरेंट्स का होता है. बट एक बार जब आप सपने पूरे कर देते हो एंड यू गिव देम लॉट ऑफ मनी, देन दे लाइक तुझसे सुना तो कोई बच्चा नहीं. Genuine. And I'd like to take this beautiful little moment, and I was thinking about my father and mother, how they'd been so strict, है ना. उन्होंने मुझे लिटरली एक वीडियो है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, जिसमें वो सरेआम कह रहे हैं तू नहीं सक्सेसफुल होएगी म्यूज़िक में, तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है. ये उनके वर्ड्स हैं. और मेरी मम्मी ने भी ठा बातें की हैं, वो तो रुकती भी नहीं है. मेरे पापा तो फिर भी जेंटल से बात कर रहे हैं. तो वो मैंने वीडियो डाली हुई है क्योंकि अब बार बार हर 2 साल बाद उस वीडियो को देख के हमें और एनर्जी आती है. और here's how my father supported me. When my first song released, मुस्कान गाने का नाम था, 2008 में. एंड मेरे पापा, उनका रूम में डेस्क था, डेस्कटॉप था, और उस पर बार बार मुस्कान प्ले हो रहा है. तो मैं कह रही पापा इतने फ़ैन हो गए. सो मैंने पूछा पापा आप सुबह से गाना सुनी जा रहे हो? तो उन्होंने बोला इससे तेरे व्यूज़ बढ़ते हैं ना. क्योंकि 1000 व्यूज़ थे बस.
सो स्वीट. तो उनको था थोड़े से तो मैं भी हेल्प कर दूं. सो ये होती है पेरेंट्स की सपोर्ट, शायद नॉट इन अ वे दैट वी वांट बट इन अ वे दैट दे नो इज़ राइट. और मम्मी की बात भी करनी है. मम्मी ने मुझे न्यूज़पेपर से एक कटिंग दी थी कि हमारे शहर में, छोटा सा शहर है कैलिफोर्निया में, स्टॉकटन, वहाँ हम रहते थे. और उन्होंने बोला ऑडिशंस हो रही हैं और अगर तू ये ऑडिशंस पास कर लेगी तो तुझे लास वेगस लेके जाएंगे बड़ी ऑडिशंस के लिए. सो हम तैयार होके मम्मी को साथ ले जाके वहाँ हम जाके पंजाबी गाना गाया था अमेरिकन लोगों के सामने. कौन सा गाना था? आई विश आई हैड अ वीडियो. मेरे नक विच नथनी ते ताने उत्ते कगरी ते मेरे कन्नी पा देओ डंडियां. मेरे नक विच नथनी ते ताने उत्ते कगरी ते मेरे कन्नी पा देओ डंडियां. हो बुल्ले शाह यार मनाना ते पावें लोग उड़ावन पंडियां. गल्लां गूड़ियां करांगी तेरे नाल ओए, गल्लां गूड़ियां करांगी तेरे नाल ओए, किसे दे नाल गल ना करियो गल्लां कूड़ियां. कभी कभी किसी मेल आर्टिस्ट ने कहा यार कि इसका फेडर थोड़ा डाउन कर दो, मेरी आवाज़ दब जाती है. जैस्मिन की आवाज़ बड़ी पावरफुल है. शायद सबने कहा होगा, हम नाम नहीं लेंगे. बिकॉज मैं आपके सारे गाने सुन रहा था, मुझे लगा इसमें मेल वॉइस, अगर कोई मेल सॉफ्ट गाता हो उसकी बेचारी की आवाज़ गायब हो जाएगी, इतनी पावरफुल आवाज़ आपकी है. वो है और पावरफुल हम बन गए हैं, हम पहले नहीं थे. हमारा पहला गाना मुस्कान सुनो, आई हैव सीन दैट. हम तो लाइक एक निन्नू सी चिड़िया लग रहे हैं. हाँ. तो अब क्या ही बताएं. सो निन्नू से चिड़िया को मिस करते हो कभी? क्योंकि बाहर की जैस्मीन जो है उसे लोग बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रांग, बहुत सख्त वुल्फ कहते हैं. ओ हो सकता है. आई एम व्हाट आई नीड टू बी इन द मोमेंट. आई am meant to thrive in any condition. I am so blessed and powered by God. And I'm here to say the things that are on my heart. And I will be who I need to be to get the point across. I'm going to ask everything. But एक शेर याद आ गया मुझे आपकी इस बात पे कि there's a famous quote कि शराफत की दुनिया का किस्सा ख़त्म, अब जैसी दुनिया वैसे ही हम. हम इन बेशर्मों की दुनिया में शरीफ बन के दिखाएंगे. आय शाबाश. वैसे अगर आप यूपी बिहार से कहीं अगर आप इनिशियली आप सॉन्ग करते सो वो गुलाबी क्वीन की जगह हम गुलाबो हो जाते. गुलाबो ही सही. नाम में कुछ भी नहीं है पर नाम में सब कुछ है. एक पंजाबी लड़की जब यूएस जाती है, हाँ जी, आई एम श्योर इतना इजी नहीं रहा होगा. क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी? I couldn't speak English like I can speak now, you know. It is definitely a struggle being an immigrant from, पता क्या है, like you're young, so you're trying to figure out who you are as a human. And then you go, matlab, America, like what, that's the furthest thing from Indian roots is, you know. And then the struggle was to fit in America, you know. I learned how to speak English. तो आप जब यहाँ 12 साल के थे आप जो गए थे यहाँ से? 12-13. 12-13 साल के थे. तब तो पंजाबी आती होगी सिर्फ? हाँ जी, पंजाबी, थोड़ी सी हिंदी. थोड़ी सी हिंदी. हाँ. अंग्रेजी तो वैसे ही पंजाबियों में सख्त होती है. या बहुत कम बोलते थे, प्रैक्टिस नहीं थी. इनिशियली सबकी सख्त होती है, बाद में सब सीख जाते हैं. या. तो जब आप यहाँ से गए 12 साल लगे ठीक ठाक ही, यू वर नॉट 3-4. हाँ, you're right. कितने साल लग गए अंग्रेजी सीखने में? I think 1-2 साल तो लगे. ओके. मतलब 1-2 साल में I caught on quick actually. Okay. Because थोड़ी देर बाद तो हम सीढ़ियाँ बांट रहे थे outside clubs. Or you know, so like I quickly embraced. It took me a few years, but that's pretty quick. That's pretty quick. Quick learner. हाँ. Oh, genuine. You know, and I embraced California like I was always from California, and
I was like, oh my God, I can do anything. Because everybody was doing something or the other. मतलब हाँ आई गॉट इट. कुछ शहर ऐसे होते हैं जो तेज चलते हैं, जहाँ लोग पैशनेट होते हैं, सपने लेते हैं और वो आपको भी बूस्ट कर देते हैं. I feel like California is definitely very ambitious and very free. And when you are your nature and your nature, your upbringing means a lot. But also when you change your environment, sometimes that changes your whole personality into who you're meant to be. California did that to me. So now wherever I go, of course I take Punjab with me. मेरे दिल विच पंजाब है. मेरा जन्म पंजाब च होया. But I'm a California girl. And I speak with confidence. नाइस, आई अप्रिशिएट दिस. फिर इतने साल क्यों लगा दिए इंडिया में? मतलब काफी टाइम, यू टुक लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक. मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, पर्सनल बात नहीं. पर्सनल का अलग सेगमेंट रखा है मैंने. Okay. Okay, so इतने साल यार मुझे कोई बुला ही नहीं रहा था. ऐसे थोड़ा आके बैठ जाएंगे एयरपोर्ट पे. ओके. मेरा गाना सुपर हिट यार ना मिले. हाँ, आते ही तुरंत हिट हो गया, तो बड़ा हिट था. हाँ. देखो तो सही. और मैंने रिकॉर्ड पता कैसे किया? फ़ोन पे, बाथरूम में, क्योंकि रात थी और स्टूडियो थे बंद. और मुझे जब अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, तो हम कहते हैं आई एक्सेप्ट. लपक ले. सो मैंने किया रिकॉर्ड फ़ोन पे और मैंने भेज दिया हनी सिंह को. फिर अगले दिन मैं गई स्टूडियो के प्रोफेशनल काम करके भेजेंगे और हनी ने बोला गाना डन है. तो ऐसा था. कैसे मिला गाना यार ना मिले? बिकॉज यार ना मिले के बाद हमने खुद लिखा है. मिला कैसे? लिखे तो आपने 400 गाने. यार ना मिले आपको कैसे आया कि ये सलमान भाई की फिल्म में गा रहे हो? वो नहीं पता था मुझे. ओके. मुझे ये पता था कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इज मेंट फॉर मी. आई फेल्ट इट इन माई हार्ट. गाने लिखे होते हैं बट गाने अपनी किस्मत लेके आते हैं. हनी ने मुझे कॉल की एंड ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन. आई डिडंट हैव इट ऑल. एंड देन आई वेंट ऑन द गूगल. I was like, okay, this is, okay, angel, devil, okay, cool. Boom, 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 boom. Then I recorded in the bathroom and then I sent it to him. And I still didn't know what was going to happen. But gaane ki kismat. So why it took so long to come here? Because mujhe kisi ne bulaya hi nahi. You wrote that song? Obviously. यार ना मिले. Heartbreak wale gaane. दिल टूटे गाने पे दुनिया को नचा रहे हो. Genuine. और यार ना मिले छोड़ो, तरस ने आग ला रखी है. हाँ, मैंने शर्वरी का पॉडकास्ट किया था. That song is so big for the both of us. So beautiful for the both of us. Such a beautiful, massive beginning to who knows what. तरस अभी आया. हाँ. और तरस का नशा उतरा नहीं, हमने नशा गाना रिलीज कर दिया. और बताओ. मैं नशे पे आऊंगा. चलो नशे पे आते हैं. आ जाओ नशे पे. ओके. मुस्कान नशा जानी का गाना था. जानी जैस्मिन. मुस्कान नशा. I made you jump from 2008 to 2020. बीच का सारा खा गए ना मेरा. I'm sorry. Listen. I'm micromanaging this. It's okay. It's already done. It's already done. It's too late? Yeah. Okay. So जानी जैस्मिन तमन्ना. हाँ. लोगों ने कहा ये बवाल मच गया. निरी आग. मैंने सुनना शुरू किया बट मेरे को इस गाने में बहुत सारे सवाल भी आ गए मेरे मन में नशे को सुनते. वाइब तो बड़ी तगड़ी थी, मजा आ रहा था. बट इसमें आया कि यार नशा जो करना है तो मेरा कर सोड़िया. एक बार पहले 2 लाइन सुना दो मेरे को, फिर मैं आगे सवाल पूछूंगा. नहीं. क्यों? अपनी मर्जी से गाएंगे. तो 2 लाइन सुना दो, फिर तो सारे फैंस सुन रहे होंगे. अब ब्लैकमेल कर रहे हो तो गा ही देंगे. इसको इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं. It is true. I have been through that Yeah. most of my life and I'm a guilty puppy. Okay? आप मुझे ये बता दो कि हमने ये काम बुरा किया, मैं 10 दिन सोचूंगी कि हम कितने बुरे हैं. So it has been used against me, but that's okay. I understand what you're saying. सारे फैंस सुन रहे हैं और I think I haven't even really sung that song. अभी तो रिलीज हुआ है. मैं पूरे गाने रास्ते वाइब लेते आया हूँ. मैं बड़ा मजा आ रहा था. तो आप ही गा दो फिर. अब मेरे को गाना आता तो मैं उधर बैठा होता. मैं 2 लाइन करोगे स्विच. इधर से गा दो ना 2 लाइनें. मेरे को गाना नहीं आता कर दो ना यार. मैं आगे सवाल पूछूंगा, आप मेरे को सुनाओ ना. आपके फैंस इतने सारे. आपकी मैं फ्लो काट रही हूँ. मेरा फ्लो नहीं काट रहे, मेरा कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो. वाहेगुरु. I hope every room I मेरा go into. पॉडकास्ट, मैंने गाना गाया तो मेरा पॉडकास्ट बंद हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कभी भी. Oh, that's beautiful what I just said, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी. That's I hope ऐसा कभी ना हो. Fingers crossed. नहीं यार. And I hope every room I walk चलो छोड़ ना यार. हाँ. तो लिरिक्स चाहिए मैं दे सकता हूँ अगर. यार इतना ये गाना मैंने नहीं लिखा बट मुझे याद है. हाँ. So
यार थोड़ा नॉटी सा गाना, मेरा वो मूड नहीं है इस टाइम छोड़ना। मेरे सवाल, चलो अगला सवाल पे तो नॉटी बन जाएगा शायद मूड। मेरे को इसमें इस गाने में एक सवाल थे, इस गाने के लिरिक्स पे सवाल थे। इसमें आपने कहा कि मुझे पता है मेरी जान। यही तो मैंने नहीं गाना था। ये स्टेज पे ना कोई और होता जो गा जाता है ये गाने। हाँ, इधर मुझसे ये सवाल मत पूछो। नहीं सुन तो लो पहले क्या था। ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं तमन्ना गाना आया, मैं सुन के आया था आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। फिर यहाँ पर मैं आया कि क्या नाम है, मैं हूँ सारी की सारी तेरी, अच्छा ओ मुझे नजरों से आप खाइए। अच्छा। सो आई सेड ये तमन्ना के सारे गानों में नजरें 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 क्यों जा रही है, क्या मतलब था इसका? नाउ शी इज स्पीचलेस। आई एम नेवर स्पीचलेस। अब अगर लंबा जवाब चाहिए तो हम, इसका मतलब बहुत गंभीर है और ये बात शुरू होती है काफी अरसे पहले से। इट्स अ मैजिकल सॉन्ग, इंडिया लव्स अ लुच्चा सॉन्ग। Isn't it true? मतलब मैं सच बोल दो। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है ना। हाँ। बस इधर कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Okay. इसीलिए तो तो मेरे को 2 लाइन सुना दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कोई भी पहला पैराग्राफ सुना दो। मुझे पता है मेरी जान आई है। आंखें तो आपकी खुल नहीं रही। और मेरी खुली हुई आंखें हैं। तेरा गाने फोकस नहीं आपका। आप मदहोश हो गए थे। नहीं, मैं मदहोश नहीं हुआ। ये हुआ मैं था पूरे- अभी, मैं मैंने तो podcast में आपको पूरे देख होश के, में। यार अब उनको तो कुछ भी कहो, मुझे देख के अभी एक लाइन में आप मदहोश हो गए, बाकी मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती। अच्छा ये क्यों लीवाई लाइन सुना दो, क्या नशा जो करना है मेरा कर सोनिया। और मैं He's sweating. Can somebody give him a napkin? इधर बहुत like, ऐसे थोड़ा चिल्ड कर देना यार, माहौल बहुत यहाँ पे। इसको बात को फिनिश मत करना। कैमरा ऑन रखो, कोई चक्कर नहीं, BTS भी अच्छी चीज होती है। हम थोड़ा सा थके हुए हैं 10-20 साल से, मैं नहीं थका अभी। तो हम सोच रहे थे कि अगर नींद नहीं भी पूरी हो रही, नींद नहीं भी पूरी हो रही, पर सपने तो सारे पूरे हो रहे हैं। वाह Nice. वाह 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 Beautiful. वाह 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 वाह। बजाओ बजाओ भाई। और ये मुझे दूसरी टी शर्ट भी चाहिए। एक सरल होना कठिन कितना है। कठिन है, पर जैस्मिन सैंडल्स को देखो। हाँ, दूसरी टी शर्ट, नींद नहीं पूरी हो रही फिर भी सपने। ओ यार गलत मत लिख देना। नींद नहीं पूरी हो रही, हाँ। पर सपने तो सारे पूरे हो रहे हैं। ओके ओके ये छपवा के लाना आप। ठीक है, नींद नहीं पूरी हो रही पर सपने तो सारे पूरे हो रहे आहो। हैं। जैस्मीन। जैस्मिन सैंडल्स यार, हाँ। गलत तो आप ही नाम बोली जा रहे हो मेरा। मैं जैस्मीन गलत कैसे? जैस्मिन, जैस्मिन। नो ऐसे नहीं। जैस्मिन सैंडल्स। जैस्मीन सैंडलेस। नहीं यार, जैस्मिन सैंडल्स। जैस्मीन सैंडलेस। जैस्मिन सैंडल्स। जैस्मिन सैंडलेस। यार आप तो मेरा नाम ही जपी जा रहे हो। एक बार कह रही है मैं नशे में हूं। इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे और चाय ला दो यार, देखी जाएगी। मैं अभी सुनंदा की शादी के हैंगओवर से निकला नहीं हूँ। है। जो पॉडकास्ट करो इससे शादी हो रही है। इससे इस शुभांकर की आंखों में प्यार दिख रहा था ना, ये आप खुद कह दे रहे हो तो ये पक्के से आने वाला है। हाँ करो करो, पार्ट यूज करो ये। बहुत सारे प्यार आने इससे आपको व्यूज आएंगे, वो जो 100 मिलियन आप भाल रहे हो ना। तो ये जानी से आपने कहा नहीं ये लुच्ची वाली लाइन क्यों लिखी? मुझे पता ही नहीं था जानी ने लिखा गाना, पर मुझे पता होना चाहिए था। ये नहीं है तो जानी ने लिखा आपको? पता क्या हुआ? Here's how it happens. Sometimes when I go to the studio, I go and do what is needed. Yeah. और सचिन जिगर के साथ जैसे इतना ब्यूटीफुल पावरफुल तरस गाना आया, जब भी जैसे कहीं से भी शुरू कर लो, all these beautiful artists have approached me कि we want you to be a part of this song, or we want you to do the whole entire song. I don't ask questions because there's so much trust and so much respect. So मैंने नहीं पूछा where's the song going, when is it coming out, and किसने लिखा है, और all these important questions, because you know what? Allow. And I love that about myself. Allow it to happen. The song has its own destiny. Don't ask questions. पैसे अच्छे मिल रहे, सवाल मत पूछो। पैसे तो ना उड़ उड़ के आ रहे हैं हर दिशा से, और गिण भी नहीं हुंदा इन्ना में तो पैसा है। दुनिया तो दूर ले जे, प्यार मेरा नैसा है।
वाह, कभी एल्बम सुनना जो मैंने बना के रखी हुई है, पर पहला काम गाने ते गाने ते गाने ते गाने ते गाना। फिर जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी एल्बम रिलीज करेंगे. Which brings me to the main point of this podcast. I am an album artist. I've released 3 albums so far. My last one was in 2020. I am so hungry, yearning to release my album. Kesua, I'm an album artist. I am in love, 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 love. When I write a song, like this book is probably filled with some songs, my thoughts, my over planning, my obsessive need to like write down my feelings. I debrief before I go to sleep. Like I have to write what happened today. मैं आपको बताती हूँ आपके बारे में लिखा है इधर. जाने के बाद मत लिखना. हैं? जाने के बाद मत लिखना. ये क्या बात कर रहे हो? भारी भरकम डायलॉग सिर्फ हम मारेंगे. यहाँ पे पता क्या लिखा है? क्या लिखा है? That's so beautiful. Okay. What I've written. क्या चीज़ है? It says your name. शुभांकर. Interview 6 p.m. आप लेट थे. Okay. हमें 6 p.m. बुला के. मुझे 6:30 का आ गया था. So आप अपनी टीम से बात क्लियर करो पहले. Okay. Cause हम तो टाइम पे पहुंचे थे. Okay. ठीक है. दूसरी बात. It says only one note. One thing I need to remember. Speak authentically and passionately. देखो लिखा हुआ है. Nice. ये genuine है. हाँ, डॉक्टर वाली राइटिंग लेकिन है. And यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कितना कुछ लिखा हुआ है. मतलब मैं बहुत लिखती हूँ. This is something I've had this habit of like writing in my journal since I was very young. अच्छा, कोई ऐसा गाना है जो लिखा हो रिलीज करने का मन हो लेकिन रिलीज ना किया हो, लगा हुआ यार बहुत पर्सनल है मेरा ये, कभी बहुत सुकून से रिलीज करूंगी. Let me see my phone. Do you have it? I want to show you something. आप सिर्फ अपना हाथ ही आया आपका. चल ठीक है. Aesthetically वो अच्छा लगता है ना, ऐसे कोई हाथ आया outside the frame and कोई चीज़ पकड़ा गया आपको. आप डायरेक्टर ही बन जाओगे. मैं शायद हूँ. ओके. मैं ही तो डायरेक्ट कर रही हूँ ये इंटरव्यू. सुनो ना. चल जोक्स ऑन द साइड, ठीक है. पहली बात तो ये. I wrote 100 of शायरीज ऑन सुनो ना. आप मेरी बातें सुनो पहले. हाँ. ये देखो कितने वॉइस नोट्स हैं. आप इसको नंबर रीड करो. ओके. 4943. ठीक है. ये काफ़ी होती है रिकॉर्डिंग्स. हाँ, काफ़ी ज़्यादा. ठीक है ना. सो ये है मेरे सॉन्ग. सो इतने हैं सॉन्ग्स, इतनी है थॉट्स. कई बार एक लाइन, कई बार एक मेलोडी. आई हैव सो मच टू से. एंड आई थिंक I've realized the power of, very late, but I've realized the power of speaking the language that people understand. You know, whether it's in songs or what you do, what you post on social media. I was so resistant to it. I was like, मैं सिर्फ albums लिखूंगी. और फिर मुझे लगा कि there are some songs that the people love. So I must do that as well. Because albums are, to be honest, like you asked me a question 30 minutes ago कि मैं क्यों लिखती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. That is the most fulfilling part of my life is writing the song. Now, whether it releases or not feels like a massive moment. But writing a song in itself is the reward. It is, I've already won when I've written the song. And if it's authentic, there's nothing above it. सुपर. जानी को कैसे जानते हो? जिक्र क्योंकि जानी से शुरू हुआ था, फिर जानी से आगे बढ़ने के पहले वापस से पूछ लूँ भाई अपना. I have known him since our song Ittar. Okay. I think maybe we met at that time. I think Ittar was the song जो reason बना हमारे मिलने का. और बहुत अच्छा था वो सॉन्ग, उसकी वीडियो, वो एक्सपीरियंस. वेरी हैप्पी वीडियो शूट. लाइक हम जस्ट घूम रहे थे और शूट भी हो गया. ऐसा था. आपको पता है नशा जो इस टाइम इंडिया के टॉप 3 गानों में चल रहा है? नंबर 1 है. थोड़ी देर पहले नंबर 2 गया था, इसलिए मैंने नंबर 1 नहीं बोला. आगे पीछे होता रहता होगा. नहीं, हमें अब नंबर 1 बनना है. बन जाएगा. ये आपने क्या बोल दिया? हम नंबर 2 पे आ गए हैं. हो सकता है जब हम ये पॉडकास्ट रिलीज किया था वो नंबर 1 फिर से हो. हाँ, हो सकता है. You're right. Numbers don't matter. Exactly.
अच्छा, आपने तरस का जिक्र किया था कि तरस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग था. सो तरस और दिस नशा, इफ यू हैव टू चूज वन. Oh my God, if I had to choose one, oh my God. Taras was such a magical experience. I get a call. Jigar says, Jasmine, are you in Bombay? I said, yes, I am. He's like, come to the studio. I went to the studio. He goes, I have a song and I want you to sing it kind of like this. आप अपने स्टाइल में गाओ जैसे हमने सावन में किया था कोक स्टूडियो. Since then, I've known Sachin Jigar. And he said, sing this song. And I sang the song and हम घर चले गए. और 4 दिन बाद वो गाना, फट गया. that was a magical, magical experience. How can you even wish for something that powerful? So I love how that happened, the process of it. And again, जब लोगों को बहुत पसंद आता है वो गाना, वो तो कितना अच्छा लगता है. पर जैसे वो गाना हुआ ना, it was just effortless. And it felt like a massive blessing from the universe. So तरस. Yeah, Taras for sure. Nasha, just when you thought that life couldn't get any better. पिछले साल तरस नहीं किया, इस साल नशा कर रहा है. नशा चढ़ा दिया सबको. चलो थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ. हाँ बता. शर्वरी या तमन्ना? यार पता आप ना अब अच्छी बातें नहीं कर रहे. अरे डांस आपको कौन सा मजा है? एक तो आप अपना गाना चूज करना टफ होता है, बट डांस आप एंजॉय किसका ज्यादा किया आपने? आप तो अग्रेसिव हो रहे हो इस टाइम. मतलब आपने मेरे पर कहा था, ये अच्छी बातें नहीं कर रहे. आरोप लगाया हमने. तो आरोप क्यों? ये मेरा काम है आरोप लगा. आज ये आपका काम नहीं होने देंगे हम. चलो ठीक है. आई ज्यादा किसे एंजॉय किया? किसको? पिक्चराइजेशन जब तरस आया था ना, आई वाज लाइक यस, एकदम सही कर दिया है. Jan 1. जब नशा आया था ना, बात बन गई. इसीलिए तो मैं कंफ्यूज, इसलिए तो मैंने पूछा. मैंने दोनों देखे ना. So, अभी मैंने कंफ्यूज करके रखा हुआ है ना. हाँ कोई चूज नहीं करोगे? यार, शर्वरी killed it. ट्रू. Tamanna was needed for Nasha. Once again, you're confused. You're like, एक लड़की को क्यों नहीं है चूज कर पा रही? नहीं यार, कहीं कहीं चूज भी करेंगे. हम डरते नहीं चलो, मैं है. शर्वरी- कुछ और पूछ लो. मैं शर्वरी चूज कर ले रहा हूँ. जेंट्स लोग के बारे में पूछ लो. मैं शर्वरी चूज कर ले, बिकॉज शर्वरी का भी पहला पॉडकास्ट मैंने किया था. तो फिर भी आप भी तो कोई क्लियर बात नहीं कर रहे ना. तो मैं कहता दिया मैंने चूज कर लिया तरस. नशा को मैं भी, क्योंकि आपने पॉडकास्ट क्योंकि किया. मैंने podcast So नहीं, ये मिलावट है इसमें. तो कोई तो एक रीजन देना पड़ेगा ना चूज करने के लिए. आप चूज नहीं कर रहे हो, आप डिप्लोमेटिक कर और रहे हो. मेरे गाने हैं सारे. तभी तो कह रहा हूँ पिक्चराइजेशन. गाने तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा हूँ, पिक्चराइजेशन की. I think Taras was an epic video shoot. या हाँ, आई मीन हाँ, वो कमाल था. Yeah. ओके, डू यू बिलीव ये जो पार्टनरशिप होती है जैसे आपकी सचिन जिगर के साथ है? हाँ. बिकॉज सचिन जिगर कोक स्टूडियो किया, Yeah. देन इससे पहले तरस किया, तरस के बाद अभी एक सॉन्ग किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज टैलेंट तो जैस्मिन में पहले भी रहा. यार ना मिला के बाद भी टैलेंट रहा. नहीं, आपने ना अभी 2 बातें कर दी है. एक जब हम यार ना मिले की बातें कर रहे थे, फिर आपने ना मुझे ये बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा. आपने बोला गाने तो और भी आपने लिखे हैं, तो फिर आपको याद है आपने क्या बोला था? मैंने कहा कि ये फटा उस कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. और अब भी आप सेम ही टोन में बात कर रहे हो कि टैलेंट तो पहले भी था. नहीं, नो, आई वांट टू नो वन थिंग कि बॉलीवुड में जैसे कोई बंदा आता है, बंदी आती है, टैलेंटेड वो है, बट उसमें क्या पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक कोई इंसान मिल जाए जो आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट दे या आप पर बिलीव करे, तो आप बैक टू बैक आते रहते हो. जैसे सचिन जिगर से आपका कोलैबोरेशन अच्छा चल रहा है. लास्ट ईयर तरस गया, इस साल ये आ गया, इससे पहले कोक स्टूडियो गया. सो आई कैन सेंस अ पार्टनरशिप विद वन पर्सन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. I think, yeah, Sachin Jigar have been such a blessing to my life since Coke Studio and then Taras and now Nasha. And like, I think Honey Singh for sure. I think Johnny for sure. I think Addi Rati with Bohemia was a big moment. Muskan in 2008 was a massive beginning to this whole thing. Abhi और कौन से गाने हैं जो कोलैब से हट के हैं, जो मेरे खुद के हैं? आपने मेरे कोई सोलो गाने सुने हैं? हाँ हाँ. क्या बोला? कौन सा वाला? मैंने आपके सारे, आई एम नॉट वेरी मच इनटू पंजाबी म्यूजिक, बट मैंने आपके सारे गाने सुने, तभी ये 3000 क्वेश्चन तैयार हुए हैं. हाँ, सो 114 गानों में से आई थिंक आई वुड से लाइक एटलीस्ट 80 ऑफ देम हैव टू बी पंजाबी. एंड बाकी बॉलीवुड, I've done a Telugu song. रत्तालू रत्तालू ओ सोसी रत्तालू घुण मंटे ना चिट्टी पट्टी लू. हैव यू सीन रॉकस्टार? I have many times. डू यू बिलीव कि आप उसका फीमेल वर्जन हो?
I'm ready for the film. I am, like, my life has been a movie, you know, like we're shooting parts of it on cameras. My life has been so rich with experience, you know. I've had so many glorious moments that I failed to recognize when they were happening. And simultaneously, in the same life, now I'm living a chapter of my life. I'm fully enjoying this glory. And I know that this is my second chance at life. मतलब अगर आप जाना चाहते हो उस मेरे माइंड के उस कॉर्नर में कि this gap that I had in my career, there was like 4 or 5 years. गाने आ रहे थे, but I was not present. Have you ever felt that? Like you're there, you're doing your duties, you're a good family member, you're doing a good job at your work, but like you're not there. क्या आपने ऐसा कभी फील किया? क्या है? कब? है लाइफ कुछ क्लोज स्टेजेस सबकी लाइफ में आते हैं शायद ऐसे. जैसे 1-2 साल, एक some phases, Yeah. right? Every opportunity feels like a golden brick to me, with which I'm building my beautiful world, you know? Like हमारी एक-एक बात, मेरा एक-एक गाना, जो गाना मैं गाती हूँ वो भी कितना अच्छा, जो नहीं गाती हूँ, you know what I mean? वो भी उतना, हाँ, वो भी उतना ही उतना अच्छा है ना? There are some global glories that I'm experiencing on a weekly basis, and then there are some inner fulfillments that I'm experiencing on a daily basis. You know, like an inner joy, like an inner childlike joy. जब किसी को शायद इसको ही पता है, ये जो मेरी notebook है, इसको पता है. Like, oh my God, you know what happened today? ऐसा, you know. But I wasn't always feeling so present and so grateful. I was lost. Like, I was recording Taras, and I think, like, there's so much love and admiration between us. And, like, every friendship that I've built, like, we're still friends, right? Even if it's, like, 10 years ago, you know? Like, he was like, when you're creating, he goes, when we're creating, that is the only time God is with us. So, like, I feel like this could be, like, a sort of a creation where, like, I want to be more honest. Like, I want to be more authentic. But you know what? Because I'm a public figure, you're a public figure, we're always on the internet world, right? और हम interview शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि so many opinions are thrown at us, right? But, and there's cameras. I'm always a different person when there's a camera on, because there's a switch that goes on. Okay, people are gonna see this, possibly. People will judge this, possibly. How do I look? How do I sound? Am I funny? Am I cool? Am I pretty? Like all these things, right? You start to put yourself through this questionnaire. Am I good enough? But like when we're doing this interview, I think this is very beautiful. And also to have people in the studio that are like, have loving, nurturing energy. It is so important. You get what I'm saying? Like, for me, like, this is it. Energy is everything. And when I feel like my energy is leaking, I can't be honest. Then I become like this different, like, cool version of myself. I got it. You get what I'm saying? Yeah. जैस्मिन को जब मैं रील में देखता हूँ या वीडियोस में देखता हूँ, सो देयर इज अ गर्ल जो बहुत सारे टैटू है, स्टाइलिश है, पियर्स कराया, बाल कलर कर रखे हैं. ये सब जैस्मिन का एक रूप दिखता है मुझे. दिस इज़ वन पार्ट. बट जब मैं आपको पढ़ रहा था और मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था या मैं आपको सुन रहा था, सो आई फील ये एक जैस्मिन है जो दुनिया के लिए, बट देयर इज वन मोर जैस्मिन जो इस जैस्मिन से बिल्कुल उलट है, अलग है. सामने वाली बहुत स्ट्रांग है, बोल्ड है, स्टैंड लेती है. एक और है जो अंदर अभी भी थोड़ा डरी है, सहमी है, बातें करती है, रोने में झिझकती नहीं है, अपने दिल की बात रख देती बिना ये सोचे क्या सही क्या गलत. Am I right? Oh, 100%. So the two people that you're referring to, one of them is Tinni, which is मेरे बचपन का nickname. Tinni is Ninu Si Chidiya. Tinni believes that everyone is good. Tinni believes that you should do good, you should help, you should love, you should always speak the truth.
and all the great things, right? Now, in this world of especially fame, power, glamour, money, this world of becoming Jasmine Sandless, I've had to learn to like protect myself. Sort of a kavach, right? So Jasmine Sandless, Gulabi Queen, you can call it whatever. It is a more brave version of myself. It is a powerful version of myself. It is who I have to become to survive in this world. Survive to kya? Thrive in this world, you know? So, and it's not something that anyone does consciously. You just learn to become the version of yourself that your future self needs. So now there is a total different version of me that my family knows, है ना? And I am deeply loved by my family and a few friends that I have. That version is so soft and so gentle. It is only love. What is your biggest fear? लोगों को खोना, अपने लोगों को? It used to be. It used to be. But अगर हम हिंदी में कर सकें. हाँ, ऐसा मेरा होता था डर कि क्या लोग मुझे छोड़ ना जाएं, कहीं लोग मुझे छोड़ ना जाएं. सो हम उनको ना पकड़ के रखना चाहते हैं. हाँ जी, और इससे हमारे हाथ छिल गए. ये दोस्त भी थे, ये फैमिली मेम्बर्स भी थे, और हम इनको नहीं रख पाए बिकॉज उनका उतना ही था. अब वो मेरा डर नहीं है. जैसे मैं जब बड़ा हो रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ. व्हेन यू आर 20 to 25, 26, आपकी लाइफ में लोग आते आते रहते हैं, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता. आपको पैशन दिखता है, सपने दिखते हैं, काम चाहिए होता है. लाइक आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट पर्सन. ओह या. बट बीते कुछ सालों से मुझे लगता है फैमिली का एक थॉट मन में चलता है, सब कॉन्शियस में, कि एक डर आता है कहीं ऐसा तो नहीं लाइफ में आप अकेले रह जाओगे. हाँ जी. अंदर कहीं आता है. दो, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है. अगर आप मुझसे पूछोगे काम या फैमिली में कोई एक चुनना हो, मैं हमेशा एवरीडे काम चुनूंगा. मुझे काम बहुत पसंद है. इट मेक्स मी हैप्पी. दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ. आपको कभी डर लगता है विथ लाइक एजिंग की आप अकेले हो, या दे शुड बी समवन, या बड़ी चीज़ों ज़्यादा छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, कोई चाय पीने वाला साथ में हो, किसी के साथ बालकनी में बैठे हो? सो चाय पीने वाला है ना मेरे साथ, आप समझा करो. You got that person. और मेरी ज़िंदगी में बहुत प्यार है. मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है. एंड इफ़ आई हैव टू चूज़ वन, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक आई एम लाइक beast mode on, like when I'm working, right? Like ये प्रोफेशन से बहुत ऊपर वाली चीज़ है म्यूज़िक, राइट? एंड लाइक आई सेड, इट्स अ बिगिनिंग. बहुत कुछ करेंगे आगे, म्यूज़िक से आगे भी बहुत लंबा रास्ता है. आई थिंक आई माइट चूज़ फैमिली इफ आई हैड टू चूज़ वन. Isn't that crazy? My biggest dream is to be a mother. It is my biggest dream, my biggest prayer to God to be a mother, to be a good mother, to be a happy mother. I want to raise a family. And I imagine my little babies like running around a tulsi ma plant, like in an angan. ऐसा ब्यूटीफुल इमेजिनेशन. ठीक है. सो वो हंस रहे हैं, घुंघराले बाल हैं, ठीक है, और बच्चे खुश हैं. और उससे पता लगता है कि माँ उन्हें प्यार करती है. बच्चे सिक्योर हैं, बच्चे सेफ फील करते हैं, बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, और कुछ भी बोल देते हैं बिकॉज उनको एक्सेप्टेंस है, उनका घर में वैलिडेशन है. जो चीज़ हम चाहते थे हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा से देते, जबकि उन्होंने अपना बेस्ट किया, ऐसे हम कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू में. ठीक है. तो बट कंप्लेंट्स होते हैं यार. हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है. वो उसको साइड पे रख के, ठीक है, रख दिया. मेरा बिगेस्ट प्रेयर है to be a mother, so I will choose family. I got it. वो मोहब्बत जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो सपोर्ट जो अपने पेरेंट्स से आप एक्सपेक्ट करते थे, कुछ रह गया शिकायत, वो शिकायत अपने बच्चों में आप दूर करना चाहते हो. ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम इसको छोटी सी चीज़ है बहुत बड़े बड़े कामों में, कि
I got that's समझो ना। that's a beautiful thought. हाँ। But जैस्मिन जैसे ट्रेडिशनली होता है ना कि इश्क किया, प्यार किया, शादी की, बच्चे हुए. हाँ हाँ, तो क्या कहना चाहते हो आप? तो अभी शादी वादी कोई प्लान सोचा है कुछ ऐसा? आ, बिकॉज ये थॉट बहुत ब्यूटीफुल, और ये मेरे को भी आता है. मोर देन गेटिंग मैरिड आई ऑल्सो वांट टू बी अ फादर. मोर देन उससे ज्यादा वो थॉट लगता है. so okay, then paint a picture for me. मेरे बच्चे तो तुलसी के आगे आले पीछे लाइक भाग रहे हैं. हाँ I have a different dream. So बताओ ना. कि मैं सुबह सो रहा हूँ, हाँ. वो पीठ पे मेरे आके बैठ के उछल कूद करे, and I'm like getting up and then playing with them. या सामने बिठा के ड्राइव करके स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लाकर पूछना. लाइक आई एम अ गाय जिसने अपने इर्द गिर्द बहुत काम किया है. Yeah. सो आई बिकेम वेरी सेंट्रिक अपने काम, अपनी चीज़ों पे. सो मुझे लगता है कि मैं वहाँ आई विल बी वेरी गुड लिसनर कि क्या रहा पूरे दिन स्कूल में. आई विल बी गुड फ्रेंड. तो माइट भी मेरी डॉटर होगी शायद, मैं कभी लाइफ में क्लब्स में जाऊँ उसका घूमने कि लेट यू डैड बी योर हीरो. सो दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स. That is beautiful. So do you have any names that you want to share with I me? haven't thought that, but I have just imagined कि मैं ले जा रहा हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें. मैं अपने बच्चों को ना लाइक मार्शल आर्ट सिखाऊंगी. फिर अपने बच्चों को कहना दूर ही रहना. मैंने नाम सोचे हुए हैं. I pray वाहिगुरु मेहर करन. I pray for a baby girl and a baby boy. क्या नाम सोचा है? मैं नहीं दसने, फिर पता नहीं किन्ने 100 लोग कर रख लेने ना. ना मैं तन बाद च दसांगी. ठीक है. शादी सोचा? सुनो मेरी बात, इधर ही मैं आपको रोक दूं. बच्चों तक बात ठीक थी. पति तक नहीं जाना. नहीं जाओगे. यही तो दुखती नस है. आए रे, शादी से डर लगता है. वैसे मेरे को लगता है, मेरे को बच्चे चाहिए. क्यों डर रहे हो? और मेरे को लगता है कि गलत शादी ना करना एक प्रॉब्लम है, बट अगर गलत इंसान से हो गई तो बहुत गंदी प्रॉब्लम है. फिर आपका करियर की भी लग जाएगी, इतने साल जो मेहनत की है सब बर्बाद हो जाएगा. तो वो डर जो है ना, वो आगे बढ़ने से रोक लेता है. दूसरा कि मेरे को मेरे पार्टनर से मतलब रोज साथ रहना आपको इंटरेस्ट ही ना रहा, या संवाद ना रहा, या एक वो भी डर लगता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ना रहा. सो बड़े सारे वो हैं कि ना, वो मतलब यू जस्ट वांट एवरीथिंग वेरी सिंपल, बट क्योंकि आप जब बहुत काम करते हो तो आप सिंपल होकर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हो. सो आई फील कि वो मेरे कॉम्प्लिकेशंस में ऐसा ना हो कि मैं ख़राब हो जाऊँ या मैं ना करूँ, या रिश्ता ख़राब हो जाए और फिर ये सब भी ख़राब हो जाएगा जो शुरू हुआ. आप एक सरल सी लड़की ढूंढो. बनी कि नहीं बात? और सरल मिलना आसान है. सबसे कठिन ओ है. यार तू छोड़ना. आप गलत नज़रों से देख रहे हो. ये दुनिया में बहुत शोर है. शोर से थोड़ा दूर बहुत प्यारे लोग रहते हैं, और उनको आपका इंतज़ार है, उनमें से एक को. तो आई थिंक लाइक आई सेड, everything is destiny. I literally have that tattooed. One of my tattoos is, it is Nice. written. This is in French. It is written, है ना? Wow. And this is my tattoo. Can you read this? Do you? पंजाब. You can read Punjabi? बताओ. मैंने जस्मिन को पढ़ा है. हाय रब्बा. पंजाब लिखिया मैं इत्थे, Yeah. क्योंकि ਜਦੋਂ मैं लिखदी हां ना अपनी कापी ते या कोई गाना, हाँ मेरे को पता है. ना? टोटल कितने टैटू हैं बॉडी में? यार मैं लाइक आई थिंक मे बी लाइक 3 4 6 दो तो मेरे बैक ऑफ द नेक पे. बैक ऑफ द नेक पे मैंने लिखवाया जैस्मिन सैंडलिस. मेरी सिस्टर ने अपना मेडिकल एग्जाम पास किया था, तो हमें पता नहीं किस चीज़ की खुशी थी. हमने बोला हम भी टैटू करवाएंगे. तीनों ने नाम लिखवा लिए बैक ऑफ द नेक. अच्छा लगा था. टोटल कितने टैटू हैं? सो लाइक 8-9 होंगे. तो आपने परमानेंट टैटू आर्टिस्ट अपने पास रखा है हर शहर में मेरा टैटू आर्टिस्ट है. कि चल फेड हो रहा है. मैंने भी एक ही बनवाया था. ब्यूटीफुल. इट्स शिव. दैट इज ब्यूटीफुल. Lord Shiva. एंड द इट्स लाइक हार्ट रेस. Yeah. हार्ट रेस कम्स टू शिव एंड शिव का त्रिशूल. सो इट्स लाइक मेरे हार्ट बीट से जो बीट निकलती है दैट गोज टू लॉर्ड शिवा. That is so beautiful. It says here, ए शरीरा मेरे. इसको अब कट ही कर देना. पता क्यों? लोग ना बड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि ना लाइक अगर टारगेट बनाना तो आपको इस चीज़ से भी बना लेंगे. तो बट इतना क्यों सोचना है? अगर हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनको भी बिजी रखो, क्या फर्क पड़ता है? यार फिर ना वो I've learned one thing in my life. लोग बड़ा सेंसिटिव सा लेते हैं इस चीज़ को. You know, which is why I don't talk about like my inner feelings for like God. Like, But you should stop taking that. I mean, this is what I've learned. हाँ. इस दुनिया में सबका अपना सही अपना गलत है. Everybody has their own definition of right and wrong. So till that time कोई चीज़ आपके कॉन्शियस को अलाउ कर रही है. हाँ. You feel this is right. That is the only thing you should be bothered about. इसके बाद जो आ रहा है
वो आउटर नॉइज है, उसका एक ही तरीका होता है. लाइक समटाइम आई गो एंड आई स्विच ऑफ नोटिफिकेशन सेक्शन, खत्म. 2 दिन 4 दिन एंड आई फील लाइफ इज सो काम. Yeah. कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं ट्विटर का नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, इंस्टा बंद कर दिया, आई गो एंड पोस्ट, भाड़ में जाओ सबके सब. हाँ, ऐसे तो मुझ पे भी बड़े FI आ रहे हैं यार. हाँ, कुछ भी कहीं भी बोल देती हूँ ना, गाने में गाली वाली कर देता और हूँ ना. छोड़ दे, बात मत शुरू करना. अब मैं आशिकी पे आ रहा हूँ, छोड़ो ना उसको. ओए आशिकी. मैंने पढ़ना शुरू किया. एक आपका कोट था, आई फील लाइक आई हैव नेवर लव्ड बिफोर, आई फील लाइक नो वन हैज एवर ब्रोकन माई हार्ट बिफोर. when ये एक इंटरव्यू में आपने कहा था. मुझे जिंदगी में कितनी बार प्यार हुआ आपको? बिकॉज आई बिलीव अब उससे तो निकल गए कि एक ही बार होता है. हाँ, बट सच यही है एक ही बार होता है. कि एक ही बार होता है, एक ही बार होता है. कैसे प्यार. पता करें कि यही वाला प्यार था, बाकी जो था वो प्यार नहीं था? जैसे मेरे को लगता है कम से कम मैंने 2 बार तो किया मैंने. यार वो प्यार नहीं था फिर, जब बार बार करी जा रहे हो तो. बार बार नहीं किया, पहली बार किया, फिर 5 साल के बाद किया. 4-5 साल का ब्रेक लेके किया तो फिर ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही कर रहे हो आप. अरे 2 रिश्ते. यार पता क्या, सुनो मेरी बात. हाँ. ठीक है, प्यार तो उत्ते कुछ नहीं. कई बारी गलती च लगता है कि I think my personality is like glitching into something like, oh, do I want to say this, do I not? You should not think. आप जब सोच के बोलोगे तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे. जब आप वो बोलोगे जो दिल में है, सो वो बहुत दूर तक जाएगा. एंड जिस जस्मिन को मैंने देखा, उसने अपने दिल की सारी बातें की, उसने अपने आंसू भी दुनिया को दिखाए कि यस आई एम लाइक दिस एंड दैट्स हाउ ऑल ह्यूमन बीइंग आर. इसीलिए शायद लोगों ने आपको प्यार किया, आपसे कनेक्ट हुए, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि हमारे जैसी एक इंसान है. So I want to speak about mental wellness. When it was COVID time, है ना, तो तब I think I was really मतलब overwhelmed फील कर रही थी. मैं बहुत stressed and बहुत sad and lonely 2020 में. और मैंने थेरेपी सीख की, काउंसलिंग. सो फिर हम पहली बार गए, दूसरी बार गए, और यू नो मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की. लाइक मैं आपको दिखा रही हूँ एक चीज़ कि जब भी मैं थेरेपिस्ट के ऑफिस से बाहर निकलती थी, आई वुड रिकॉर्ड अ वॉइस नोट. ये एक जस्ट रैंडम सा वॉइस नोट है. थेरेपिस्ट 4th विजिट, 10 मिनट बात कर रही हूँ मैं अपने आप से, है ना. हाँ, अपने आप. ये सारी मेरी अपने आप की बातें हैं. सो मैंने थेरेपी के बहुत सारे सेशंस लिए. मैंने सारा अपना बैगेज अनपैक किया. व्हाट आई एम फीलिंग, ऐसा क्यों, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया. बहुत कंफ्यूजिंग है ये लाइफ, और क्या करें. सो बहुत सारे थेरेपी सेशंस के बाद मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि आपको एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है. जो कि लाइक दैट्स व्हेन counseling is conversation, psychiatry is medicine, right? So then the psychiatrist said कि you are bipolar. okay, And she happened to be Punjabi. This is in California. She happened to be Punjabi. Was it a coincidence? I don't know. And she said, मैंने आपकी इंटरव्यूज़ देखी हैं, और आपकी इंटरव्यू से साफ पता लगता है कि आप बाइपोलर हो. एंड मैं चाहती हूँ कि आप मेडिसिन से इसको ठीक करो, बैलेंस कर लो. Because it's the chemicals of the brain. Sometimes you need more than conversation. So this is 2020, and I have never spoken about it. If I'm not comfortable, maybe we won't use this part, but if I am comfortable, my intention is, okay, look at me now. There is light at the end of the tunnel. So, मैंने medicine ली. So now, not getting too much into it, it was the worst time of my life. The medicine, sometimes it takes a few medicines to find out which one works for you. कभी आप इमोशंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, कभी आप इधर हो,
और कभी आप इधर हो. So, मुझे लगता है मैं गलत बोल रही No, हूँ no, ये. you're right. You should talk about this because there are n number of people. जब आपकी मेंटल हेल्थ की बात मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो आप बात कर रहे हो ये इसका कुछ हिस्सा मैंने लाइफ में टाइम फील किया था. देन आई गॉट अ पैशन एंड आई गॉट अ पर्सन. लकली आई गॉट सेफ. एंड आई बिलीव नाउ जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि एक टाइम पे बहुत बहुत एजी पार्ट था वो और मैं फंस सकता था. मैं निकल गया बट बहुत नहीं निकल पाते हैं. और मुझे कई बार लगता है ना कि मोर देन अ डॉक्टर कई बार आप लोगों को सुन के आप समझ जाते हो क्या नहीं करना है. सो इधर आने से पहले आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग. मैं थोड़ा सा पीछे लाता हूँ, थोड़ा बैक करके हम आते हैं. आप एक सक्सेसफुल इंसान हो. 2012 में 2014 में आप पे गाने हिट हो गए. यू लिविंग गुड ड्रीम, यू हैव गुड मनी, यू हैव अ फैमिली एंड आई एम श्योर छोटे छोटे रिश्ते भी उससे पहले टूटे होंगे. सबके होते हैं लाइफ में. इस बार आप कमज़ोर क्यों पड़ गए? I think I got diagnosed late. I think I was just dealing with it. शायद बहुत सारे लोग हैं दुनिया में हाँ. जिनको थोड़ी सी थेरेपी से, थोड़ी सी काउंसलिंग से, थोड़ी सी मेडिसिन से बहुत हेल्प मिले. उनको पता ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि एकदम से इधर और एकदम से इधर. उनको लगता है ये मूड स्विंग है हाँ, ऐसा बहुत होता है हर कि ये घरों तो बहुत मूडी है. हाँ. ये तो बड़ी मूडी आर्टिस्ट है, कुछ भी कभी भी बोल देती है. It took a psychiatrist who had seen my interviews like this one to say कि मुझे तो पहले से ही पता है. जस्ट हाउ टू डिसाइड. जैसे आपने ये हमारे आसपास भी होता है. मेरे भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको देख के जो आप बात कर रहे हो ना शायद मैं भी जज कर लेता हूँ कि बहुत मूडी है या बहुत मूड स्विंग हो रहे हैं यार, या इतना क्यों वॉलेटाइल होना कि एक पल में इतना खुश एक पल में गुस्सा. क्योंकि आप मेंटल हेल्थ बहुत बार बात भी करता है. एंड आई वांट टू नो कि इंसान कब डिसाइड करे कि उससे किसी से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए प्रोफेशनली. एक तो हो गया कि पहले अपने घर में बात कर लो, दोस्तों में बात कर लो, इफ यू हैव योर लव्ड वंस. व्हेन इज द राइट टाइम कि आप डिसाइड करो कि नहीं यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प. बिकॉज आप उस लाइट के दूसरे जोन में आ चुके हो जहाँ पे अब उजाला है. सो आई एम श्योर कि यू कैन हेल्प पीपल नाउ. Yeah. Oh, I love the way you worded that. I love the way you worded that. Sometimes choose a person, right? One person. You can't guarantee if it's going to be your parents or siblings. एक इंसान जो कि आपको सुने, because it's a really lonely place. और imagine मेरे गाने चल रहे हैं और मैं शोज़ कर रही हूँ. I remember Bum आ गया, The Shoot, see, a super hit song now. I couldn't get out of bed that morning. I was on depression pills. और वो depression pills खाने से पहले मुझे कुछ खाना था और मैं वो एप्पल नहीं खा पा रही थी. और मैंने वो शूट कैसे किया वो मुझे पता है. गाना बड़ा हिट है और मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ वीडियो में और ये बड़ी पुरानी बात है. बट it is so difficult to do the simple things. And I'm thankful that I've been through that. I prayed so much कि मैं ऐ नहीं प्रे कर रही सी कि मैं ठीक हो जाऊँ. मैनू सीगा मेरी मेडिसिन मैनू सूट कर जे. Yeah, it feels like a quicksand. And nothing feels worth it when you're at your lows. Because outside of this interview, basically, like there's like manic and there's depressive, right? So manic is like lots of energy, anger, just energetic. Depressive, you already can imagine. You can imagine, but you really don't know. Because ये sadness or depression अलग होता है. I'm having a bad day, I'm sad. That's totally different. I can't get out of bed. I cannot eat this apple so that I could take my depression pills to shoot this music video is a totally different scenario. But everyone who has been through something like this, they know what I'm talking about. They know their apple. They know their task that they have to do. So yeah, it was a very important chapter of my life that I have experienced and deeply felt. And I felt really helpless. So कब
हेल्प सीख करनी चाहिए जब आपको लोनली लगे. सो मैंने कॉल किया और my hands used to shake, you know, and my mom used to pray for me. My mom came from America to India to take me back to America because बुरा हाल था. शोज़ तो हम कर ही जा रहे थे क्योंकि शायद इतना ऑटो पायलट पे है कि मुझे पता है स्टेज पे क्या करना है. बट मैंने इन द मिडल ऑफ टूर मैंने 3-4 शोज़ के बाद कैंसिल कर दिए. मेरी सिस्टर अमेरिका से इंडिया आई. मैंने उसको बोला मुझसे शो नहीं हो रहे. सबसे पहले जब वो आई ना घर पे शी साहब मम्मी ने बोला था हेड मसाज करूँ तेरी जाके. सो दैट्स व्हाट शी डिड एंड what a powerful now I'm just like trying to like turn it around somehow, but you know there's no nice way, there's no light way to talk about something so dark. And you know, in that darkness I wrote my album Kesua, which is an album about light. So आप imagine कर ही सकते हो कि इतने darkness में बैठ के मैंने अगर hope और लाइट और ग्रैटिट्यूड के बारे में गाने लिखे हैं. और गाने बड़े सुंदर हैं. गाने पता कितने सुंदर हैं? जैसे स्नोफॉल होती है ना, तो एक स्नोफ्लेक अभी ज़मीन को टच नहीं किया, उतने प्योर. और लाइफ में बहुत कुछ करना है. लाइफ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, अपने मोस्ट वल्नरेबल इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी शेयर करने हैं. और जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी ना, फिर मुझे ऐसे ही बातें करनी हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं. और I wanna support people whether or not they know that I have done that. I want to be a mother to 1,000 children. I want to help women in any way that I can. I want to speak about the LGBTQ community. I want to speak about freedom. I want to speak about empowering each other. I want to speak about uniting our people. I want to speak about the stray dogs and cats that are on the streets. I want to speak about mental wellness more than anything. I want to do things. And sometimes I won't say that I did it. But when I'm really, really famous and everybody's listening to me, maybe I'll say, okay, oh, you know, let's all help this cause, and maybe that will be my cause. And maybe I'll just speak about it once or twice, so it doesn't, you know what I mean? That is for your inner peace, not for the world. दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, Oh, no, no, no. खुद की खुशी के लिए. Oh, ना. आपने कितने टाइम से बात नहीं ना की, मैं ही बोली जा रही हूँ. मेरे को जैस्मिन एक बात खुद समझनी है आपसे. जब किसी का दिल टूटता है, इंसान टूट जाता है. बट मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को ये जानना है कि ये जो आपका बैड फेस था, ये सिर्फ दिल टूटने का असर था या इसके पीछे भी एक बैगेज आ रहा था जो सब मिलाकर ये इतना फटा? I think it's the right amount of childhood trauma that'll. Yes, that's what I say. क्योंकि दिल टूटना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. यार दिल तो बार-बार टूटता हाँ, है. सिर्फ जेंट्स लोग थोड़ा दिल तोड़ते हैं. हाँ. ये लेडीज लोग, जेंट्स लोग थोड़ा सिर्फ दिल तोड़ते हैं. हाँ. ये बचपन से टूटता आ रहा होता है. And there is a straw that breaks the camel's back. What So- is that trauma? हाँ? क्या वो trauma जो यार abandonment, neglect. We as children, what do we need? Safety, security, acceptance, validation. मुझे तो इतनी नहीं मिली, आपको मिली? मॉम से मिली, डैड को लेके थोड़ी कहीं कहीं क्वेश्चन थी. बट मेरे को शिकायत रही कि मेरे को बाहर बहुत भेजा. सो आई फील, जैसे मैं कई बार शिकायत करता हूँ कि मैं अकेले सोता हूँ. इवन फैमिली गैदरिंग भी होती है, मैं अकेले सोता हूँ. सो जब एक टाइम के बाद मैं घर आया, 10th के बाद जब मैं आया और सब साथ में आए, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल क्योंकि मेरा चाइल्डहुड वो अकेले था. मुझे लगता है मैं अपनी उम्र से बहुत जल्दी बड़ा हो गया था. और उसका रीज़न ये था कि मैं अलग अलग रिलेटिव्स के यहाँ भेजा गया. क्लास 3rd में था मैं, और मैं कई बार शिकायत करता हूँ कि 3rd क्लास के बच्चे को आप बाहर क्या सोच के भेज सकते हो, उसे कुछ समझ नहीं होती. वो अकेले बैठ के खिड़की किनारे आप देखते हो दुनिया. रात को मेरी बालकनी ऊपर थे, आई टू वॉच आउटसाइड. आई हैड गॉन थ्रू ऑल दिस, बट लकली मुझे वो एक लाइट दिख गई थी मेरे काम में, और उससे मैंने अपने आप को डाल दिया.
एंड देन आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट एंड सब कुछ बदल गया पीछे. सो मैं उस चीज़ को सोचने का समय नहीं मिला मुझे. बट कभी लाइफ में मैं ठहरूंगा तो शायद वो चीज़ मुझे हॉन्ट करेगी, या एक टाइम पे बहुत की थी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैंने आपसे कहा ना कि वो एक टाइम था जब मुझे लग रहा था मैं निकल जाऊँ, फंस जाऊँगा, या जहाँ तक मैं गया था वहाँ से लोग लौट नहीं पाते. बट मैं लौट आया. आई थिंक वन, बिकॉज आई वॉज रिलीजियस, उससे बहुत मुझे पीस मिला और बहुत गाइडेंस मिला. मुझे हमेशा गॉड ने गाइड किया. मेरे दिमाग में एक थॉट आता था और वो होता गया, और उन्होंने मेरे रास्ता ईजी किया. मैंने जर्नलिज्म नहीं किया, आई बिकेम टीवी एंकर. मैं इंडिया के नंबर 1 चैनल में था. स्टार्टेड माई ओन सेटअप, क्योंकि जैसे मैं स्टेबल होऊंगा मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हॉन्ट करेंगी मुझे. बट मैं स्टेबल हो ही नहीं पा रहा. मैं एक सपना देखता हूँ, वो खत्म होता है, दूसरा देख लेता हूँ, फिर उसमें लग जाता हूँ, फिर कुछ और देखने लगता हूँ. तो वो एक्सप्लोर में इतना लगा हूँ कि नई चीज़ों में मैं उलझा पड़ा हूँ. बट दैट्स वाई एम आस्किंग यू, क्योंकि आपकी लव लाइफ की बहुत सारी बातें इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपके वो जो आंसू हैं या परेशानी है जो मैं सुन रहा हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वन ब्लडी रिलेशनशिप. इट्स मोर देन दैट कि वो बैगेज है. इसलिए मैंने आपसे भी पूछा था कि क्या एजिंग आपको परेशान करती है, कि हम बड़े हो गए हैं और हमारे पास वो लोग जो पूरी तरह हमारे अपने, हमें पता हो कि हम कुछ भी करेंगे जाएंगे नहीं, वो होना परेशान करता है. बहुत सारे टॉपिक्स छेड़ दिए आपने. वो जो मेरे इस वो जो वीडियोस की आप बात कर रहे हो, शायद इंटरव्यूज़ के क्लिप्स होंगे, है ना? स्नैपचैट्स ऑल, है ना? और लोग कितना तमाशा बनाते हैं ना किसी के दुख का. ये है दुनिया. जब भी कोई रो रहा है या कोई केले के छिलके से ही फिसल के गिर जाए तो वो वीडियो बड़ी वायरल होती है. ट्रू. ये है दुनिया. तो वो रिलेशनशिप के बारे में बात करके मेरी जबान काली होती है. तो मेरे को रिलेशनशिप बात ही नहीं करनी है. तो आप शुरू कर रहे हो बार बार. नहीं, मैं खत्म कर रही हूँ. मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों कंपाइल करके, हाँ, वो तो बिकॉज ये डिप्रेशन आया कहाँ से. इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हम बहुत जेंटल तरीके से इन चीज़ों की बात करें. एंग्जाइटी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है आपका हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा, जिसको कहते हैं पैनिक अटैक, है ना? और डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर को डेफिनेटली हम बहुत जेंटल तरीके से सुने या उसकी बात करें, वो बड़ा हेल्पफुल होगा. सो ये है ना. और ये आया कहाँ से? शायद ये उभर के एक टाइम पे आता है, शायद ये अंदर ही होता है, शायद ये डायग्नोस लेट होता है, बट शायद ये बहुत पहले से आपके साथ चल रहा है. सो शायद कुछ ट्रिगर करता है इस चीज़ को, और फिर आपको उस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है, बिकॉज देन देयर इज़ अ डेड एंड आफ्टर दैट. It's darkness when you're in that place. So you have to seek help. I think the right amount of childhood trauma will make you a legend if you work on your craft. It is so, so necessary. कि you've had some tough times. Don't you agree? अगर आपकी ज़िंदगी बहुत soft होती और बहुत gentle होती, शायद आप कुछ भी ना कर पाते. क्यों ही करना? सब कुछ तो है. और कहीं से निकलने के लिए ही तो स्ट्रगल करना पड़ता है. अगर इधर सोफे पे कंफर्टेबल हो जाओ दिन रात, तो फिर क्या स्ट्रगल? True. So to answer your question, आप कह रहे हो कि आपको बहुत जगह भेजा गया. I was 3 months old, I think, when my mom dropped me off at Masi's house. I love my mom. I love my Masi. They all love me so much. मम्मी की जॉब थी और मैं थी 3 महीने की. सो मुझे नहीं पता क्या असर हुआ है, पर कुछ तो हुआ होगा. पापा मम्मी को बच्चा देख के सीखता है कि क्या ये दुनिया अच्छी है और क्या ये दुनिया बुरी है, क्या ये दुनिया सेफ है, कि क्या डरना चाहिए हर इंसान से, प्यार से, नए रिश्तों से. क्या फॉरएवर कोई चीज़ होती है? प्यार क्या होता है? घर क्या होता है? सो ये हम घर से ही सीखते हैं. सो जब नहीं सीखते, जब नहीं एक्सपीरियंस करते जो हमारे दिल को चाहिए, तो फिर हम खुद बनाते हैं. हम रिश्तों को पकड़ के रखना चाहते हैं, जो मिलते, जिसने हमें थोड़ा प्यार दिया उस पर हम सब कुछ लुटाना चाहते हैं. दैट्स द फर्स्ट, इसको उल्टा करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस. You feel like
like I'm valid if you're with me. I'm good if you love me. That is like a telltale symptom of low self-worth. खुद पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि आप अच्छे हो. एक प्रोफेशनल जैस्मिन जो काम कर रही है, जैसे मैं अपने साथ फील करता हूँ. Someone asked me कि are you introvert or extrovert? I said I'm an extremely introvert person who is extremely extrovert. ये मैं कई बार अपने बारे में कहता हूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है. क्योंकि जब मैं काम करता हूँ आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, और जब मैं अपने घर में, अपने रूम में या अपने लोगों के बीच में हूँ तो मैं बहुत अलग इंसान हूँ. कॉन्फिडेंस का भी वही हिसाब किताब है. आपको कभी फील होता है कि आपका काम आपको पावरफुल फील कराता है और बाकी टाइम आप लो फील करते हो कई बार? I feel really powerful when I'm on stage. It's a totally, I don't even know who she is. मुझे लगता नहीं कि टिन्नी जैस्मिन को जानती है, जैस्मिन टिन्नी को I don't think ये कभी मिले हैं. टिन्नी है कि निन्नू सी चिड़िया, उसको तो कि सरल सी है. And the girl you see on stage with the red hair, you can't touch her. Wings उसके इतने बड़े हैं नोच खाएगी कि पूरे शहर को पता लगता है कि बादल छाए हैं, फिर ऊपर देखो तो ड्रैगन. सो ये है डिफरेंस टिन्नी और. सो इसके बीच का बैलेंस कैसे बनाते हो? अब जैसे आप अभी है ही आप नहीं. लाइट हो भी, है ही नहीं, बैलेंस तो है ही नहीं, इसीलिए तो कभी कभी दवाई खानी पड़ती है. बट जैसे अभी आप कह रहे हो कि अभी आप यू आर नॉट इन अ बेटर पोजीशन, अभी क्या बैलेंस बनाया? कुछ डू एंड डोंट जैसे मैंने बनाया अपने लिए. आई गिव एग्जांपल ऑफ टॉर्टाइस. मुझे लगता है कि लोग मेरे इमोशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने उसका एक नया तरीका निकाला कि हर इंसान को ज़िंदगी में घुसने ही मत दो, लिमिटेड रहो, और क्योंकि जो आपके अंदर तक घुस आएगा उसके लिए आप बिल्कुल अलग इंसान हो. सो उसके पहले इतनी मोटी शील्ड लगा दो कि बाउंड्री की बात कर रहे हो, ये मैंने बड़ा लेट सीखा. बाउंड्री होती क्या है? लो सेल्फ वर्थ, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम को क्या समझाओगे बाउंड्री क्या होती है? निन्नू सी चिड़िया को क्या समझाओगे कि बुरे भी लोग हो सकते हैं? ये बार बार धोखे खा के हमने अब मान लिया कि लोग बुरे भी हो सकते हैं. तो अब जैसे दुनिया वैसे हम ना प्रूव करना पड़ेगा. बुरी दुनिया अच्छी हम. वो नहीं चाहिए, फितरत नहीं बदलती. हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे. वो मेरा कोर थोड़ा चेंज होगा. हम आपसे कैसे बात करते हैं, इट शोज यू इफ यूर इन और आउट. एक तो होती है विंडो से बात करनी कि हाँ हाँ हाँ, एक होती है इकट्ठे बैठ के बात करनी. बाउंड्री बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, खज ये ना जो लोग होते हैं ना उनको हम पहचानने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये इससे बचना चाहिए कि क्या ये बड़े अच्छे हैं. और जो लोग आपको पहले दिन आके अपनी रोने वाली कहानियाँ सुनाए ना, उनसे बचो. ऐसे 2-3 थे, और 2-3 लोगों के बाद मुझे पता कि लगा कि अगर पहले दिन इंसान आके आपके पास रो रहा है कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो बड़ा बुरा होता है, मेरी हेल्प कर दे, वो है सांप. और 3 नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं इस टाइम. एक था वो जिसकी बात करके मेरी जुबान काली होती है, तो इसलिए तो हम बोल भी नहीं सकते नाम. हाँ ठीक है. और वो बाकी 2 जो हैं वो छोटे छोटे वो मेरे टीम के लोग थे, रोते आए थे मेरे पास और वे लूट के गए. ये होता है, ये रोने वाले लोगों से बचो. Nice. What makes you happy? Writing a song makes me really, really happy. Okay. You know, I wrote about this. Should I show you? Yeah, sure. हाँ, I wrote all these notes और इनमें से मैंने कोई भी बात नहीं की आज. बताऊँ what makes me happy? अभी बताती हूँ वो सेक्शन. मैंने बोला हाय रब्बा देखो तो सही, पढ़ के सुनाओ ना यार. Happiest moments. Family, writing, song, हाँ. अब वो भी मेरे दिमाग और ये क्या, ये क्या? अब वो है, अगर उसको इसके बाद छेड़ने वाला आप ना समझ गए ना? हाँ, हाँ, और ये ना कितनी अच्छी बात है ना, मैं आपको अपनी कॉपी दिखा रही हूँ कि ये मेरे दिल की बात है. शायद मैं ये है, ये इसी के बाद जस्ट रखा है मैंने. हाँ, सारे मेरे टैब्स खुले हुए हैं इस टाइम, जो मर्जी पूछ लो. हाँ. हाँ सो क्या खुशी मिलता है? गाना लिखना.
हाँ, गाना लिखना इट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड फैमिली फॉर श्योर. जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना तो हम हंसते हैं. मुझे लगता है मुझे ग्रैमी मिल गया. फैमिली में कौन कौन पसंद है, किसका बहुत खुश होते हो? मुझे मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन बड़ा अच्छा लगता है. दोस्त हैं आपके um, कोई ऐसा जिससे आप कॉल करके कह सकते मेरे हो? दोस्त अच्छा मेरे फ्रेंड्स हैं. हाँ हैं. ऐसे वाले कि अरे पता आज क्या हुआ, ये वाले कि जिसको फ़ोन करे कहो अरे जैसे डायरी से बात करते हो ना, ऐसे वाले? हाँ, वो उसको उनको ना 1 महीने बाद मैसेज करते हैं और लंबा वॉइस नोट जाता है. तुझे बताती हूँ पिछले 2 महीने क्या हुआ. सुन. और ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सहेलियाँ, दे पुट मी ऑन लाइक प्ले. सब तो मेरे पास है विद प्रूफ. 10-15-20 मिनट का वॉइस नोट होगा. दिस व्हाट हैपेंड, दैट्स हाउ आई फेल्ट एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड, आई एम फीलिंग रियली रियली गुड, आई एम सो थैंकफुल, वाहेगुरु वाहेगुरु. लाइक दिस इज हाउ माय वॉइस नोट्स आर. एंड सो Akasa, she's a dear friend and angel in my life. She can tell you what kind of friend I am. We've known each other for like 10 years or so. And yeah, मेरी काफ़ी सहेलियाँ हैं, पर मैं Akasa का नाम लेना चाहूँगी. वाई वो एक का नाम क्यों लेके आया स्पेशली? बड़ी सरल है वो, बड़ी अच्छी है वो. और उसे मेरे शोभा से. You don't need to be Jasmine there. हाँ. वो चिड़िया के साथ भी उतने Oh yeah. उससे मेरी जैसे मेरे करियर के साथ कुछ नहीं लेना देना. And I love that. And at the same time, I love people that champion me for doing great. मतलब you're doing good. I saw your song. You're doing good. But we never talk about the song when we meet. We talk about यार क्या खाएं. I've just not been on my diet, man. I need to eat healthy. I have this. You want to join boxing with me? Like that. Nice, interesting. और लंबी है लिस्ट जिनको मैं प्यार करती हूँ. लंबी है लिस्ट. वृंदावन से प्यार कैसे हो गया आपको? एक दिन हम गए. कितने टाइम पहले? I would say a few months ago. गए थे. And that was the first time आप वृंदावन गए? Yeah, मुझे पता भी नहीं था कि ये एक रियल जगह है, कि ये कोई मैजिकल चीज़ है. Okay. वृंदावन हमने सुना था. Okay. So हमारे मन में ख्याल आया वृंदावन कैसा है. Okay. तो फिर हमने जाके देख लिया. शायद लॉर्ड कृष्ण ने आपको बुलाया होगा. राधा रानी ने बुलाया था. हाँ, राधा रानी ने बुलाया होगा. सो राधा रानी ने, जब मैं फिर बॉम्बे गई, मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि राधा रानी लेके आए ख्याल कि मुझे घर लेके आओ. वाओ. ये सबसे व्हेन आई वोक अप मेरा पहला थॉट ये था, अभी मेरे टेम्पल में बिल्कुल मिडिल में कृष्ण जी और राधा रानी हैं. ऐसा है तो इनको मैं सुबह उठ के सबसे पहले इनको देखती हूँ, सोने से पहले एंड में इनको देखती हूँ. और वृंदावन में हम अभी थे 2 दिन पहले, अभी फिर गए थे हम. कहाँ पे गए थे वृंदावन? हम प्रेमानंद जी महाराज को मिलने गए थे. नाइस. हाँ जी. और हम उनका एक वर्ड सुन के रो पड़ते हैं. जैसे हमने मास्क पहना था, मेरी वीडियोस हैं पर हमने I think I've seen that video, yeah. तो ये रिसेंट वाली में ना, हाँ. हम तो जैसे 10 मिनट बैठे थे उनके सामने, तो हमने मास्क पहना हुआ है, वो इधर बैठे हैं, हम बिल्कुल साइड से उनको देख रहे हैं, उन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देखा. तो हुआ क्या, उनकी आंखें बंद हैं. I don't know why I'm talking about this. It's beautiful. You should talk about Is it this. okay? Yes. This is not the kind of interviews that I've done. It's okay. This is not an interview. चल ठीक है फिर. हाँ, दिल की बात बताओ यार. So हिंदी में बताओ तो और लोग सुनेंगे because a lot of people love प्रेमानंद महाराज. oh yes. बात कर सकते हैं ना. हाँ. गलती तो नहीं होगी. नहीं, इसमें कुछ नहीं है. So उनकी आंखें बंद होती हैं जब आप उनको मिलने जाते हो, तो आप बैठ जाते हो. तो फिर जब उन्होंने आंखें खोली और पहला वर्ड बोला, तो हम तब से रोना शुरू किए. तो फिर हम रोते रहे मास्क के अंदर. तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर आप सब जाओ, ऐसा बातें सुन के. तो हम बाहर वेट कर रहे थे, तो हम जा रहे थे ओवरवेल्म्ड. ऐसा लगता है जैसे कि ये एक ड्रीम है, कि ये हुआ कि नहीं ये बाद में पता लगेगा. ऐसा फील होता है. You're in that moment, but you're not realizing that moment. हाँ जी. हाँ. तो ऐसा था, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म. आपको एक नीनू सी चिड़िया जैसा फील होता है. बड़ा अच्छा फील है. तो फिर हम बाहर गए, हमें किसी ने बुलाया, सखी कह के बुलाया. तो हम पीछे देख रहे हैं, उन्होंने बोला कोई आपको अंदर बुला रहा है. तो मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दिया है, कि क्यों, मतलब हम तो जा रहे हैं यहाँ से,
क्या मैंने ज़्यादा लंबा टाइम वेट किया यहाँ पे कि मैं कुछ या सो मुझे ऐसा नर्वसनेस हो गया. फिर हम गए और उन्होंने मुझे राधा रानी की ओढ़ी हुई चुन्नी पकड़ा दी और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और हम फिर रो पड़े. हम तो फिर काफ़ी टाइम रो रहे थे, हमारा सिर झुका हुआ था और उन्होंने हमें वापस बुला के हमें, तो ऐसा था. तो फिर वृंदावन इज़ सुकून. it is a state of mind. Like मैं वृंदावन को इधर भी लेके आई हूँ, मैं वृंदावन को बॉम्बे भी लेके जाऊँगी. और एक जगह है मेरे लिविंग रूम में, एक when I sit there मुझे लगता है मैं वृंदावन में हूँ. सो ये चीज़ बहुत कीमती है. शायद इट सीम्स वृंदावन आपके जहनी तौर पर बहुत कनेक्ट हो गया है. आई कैन सी योर आईज, दे आर वेट. राधा रानी keeps me anchored in love and grace. Radha Rani. So the first time I went to Vrindavan, और मैं जब स्टूडियो गई ना, मैं बड़ी बार स्टूडियो गई और मुझे था माइक ऑन कर दो, आप थोड़ा बाहर वेट करना. I was singing Radha 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 Rani Radha Rani Radha Radha. फिर दूसरे सेशन पे फिर मैंने बोला आप 5 मिनट दो, मुझे कुछ गाना है, अब माइक ऑन कर दो, मुझे सुनना है कि मैं क्या गा रही हूँ. राधा राधा रानी राधा रानी राधा रानी. इतना ही बात करना चाहते हैं हम. ब्यूटीफुल. वृंदावन क्या एहसास दिलाता है? क्योंकि आपने ये आपके साथ बॉम्बे तक गया, मुझे लग रहा है कि वृंदावन ने आपकी वो जो पूरी जर्नी थी बचपन से लेकर यहाँ तक की, उसके बीच में, जैसे अगर मैं कहूँ कि धूप के बीच में बरगद की छाँव दे दी, सुकून दे दिया, वो आपको एक ज़रिया दे दिया जहाँ से आप फिर से इवॉल्व हो गए. वो पॉजिटिव एनर्जीज आ गई और नेगेटिव एनर्जीज को धीरे धीरे बाहर कर दिया. आई कैन सेंस दैट. इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हो प्री वृंदा एंड पोस्ट वृंदा जैस्मिन को? आई एम एंकर्ड इन लव एंड ग्रेस. मुझे लोगों पे गुस्सा नहीं है और मुझे पता है ये सफ़र बहुत लंबा है, म्यूज़िक से बहुत आगे है. मुझे पता है कि अब सब अच्छा होगा. मुझे पता है कि मैं बार बार वृंदावन जाऊंगी और शायद कभी भी पोस्ट ना करूं एक भी फ़ोटो, बिकॉज इंटरनेट की दुनिया और वृंदावन ये मिक्स नहीं होता. True. बट जब बात करनी हो वृंदावन की तो हम घंटों कर सकते हैं. राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्त बन गई जैस्मिन. मुझे तो मैं जितना कम बोलूँ वो मेरे दिल में ही रहने दो बात. ब्यूटीफुल. बट चलो ठीक है, मैं इसको उससे कनेक्ट करता हूँ. रिलीजियस होना या स्पिरिचुअल होना आपको हील करता है? 1,000%. 1,000%. Say Radha. Say with me. Radha. राधा Radha. राधा Radha. राधा. Radha. Say Radha. Say it. राधा Radha. राधा. None of this matters. Love is all that matters. True.
Love is all that matters. True. Shri Radhe. You should create a beautiful song about Shri Krishna. There's a very famous song, Bhajma